ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن میں باقاعدہ آغاز کر اس خبر سے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو خط لکھ کر مشاورت کے لیے مدعو کر لیا۔ نگراں وزیر اعظم کے تقرر کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان مشاورت آج ہوگی۔ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد نگراں وزیر اعظم کا نام فائنل کرنے کے لیے 3 دن کا وقت ہے۔ 3 دن میں نام فائنل نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا۔ وزیر اعظم اور آپ کو بتائیں اپوزیشن لیڈر میں آج بات چیت ہوگی۔ نگراں وزیر اعظم کے نام پر اتفاق کے لیے بات چیت ہوگی۔ 3 نام اپوزیشن کی جانب سے اور 3 نام حکومت کی جانب سے پیش کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو خط لکھ کر مشاورت کے لیے مدعو کر لیا۔ نگراں وزیر اعظم کے تقرر کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان مشاورت آج ہوگی۔ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد نگراں وزیر اعظم کا نام فائنل کرنے کے لیے 3 دن کا وقت ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں سندھ میں نگران سیٹ اپ کی تیاریاں، رواں ہفتے سندھ اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کر لے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے نصف درجن سے زائد ناموں کی گونج۔ جی ڈی اے اور ایم کیو ایم نے نگراں وزیر اعلیٰ کے ناموں پر اتفاق کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اب تک کے نمائندے رضوان احد خان سے۔ جی رضوان، کیا تفصیلات ہیں؟ ابھی رابطہ بحال نہیں ہوا ہے، ہم آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں سندھ میں نگراں سیٹ اپ کی تیاریاں جاری ہیں۔ رواں ہفتے سندھ اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کر لے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے نصف درجن سے زائد ناموں کی گونج اٹھی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں رضوان احد خان سے۔ جی رضوان، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں سندھ میں نگراں سیٹ اپ کے لیے تیاریاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ رواں ہفتے سندھ اسمبلی کی جو مدت ہے وہ پوری ہو جائے گی اور نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے درجنوں نام جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں۔ جی ڈی اے اور ایم کے ایم نے نگراں وزیر اعلیٰ کے ناموں میں اتفاق کر لیا ہے۔ سابق کمشنر جو ہیں شعیب احمد صدیقی، ان کا نام ہے۔ سابق سیکرٹری خزانہ ہیں یونس ڈھاکہ اور ڈاکٹر صفدر عباسی۔ جی ڈی اے اور ایم کے ایم کے متعلقہ امیدوار جو ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی سابق چیف سیکرٹری ممتاز علی شاہ، صدیق میمن اور سابق چیف جسٹس مقبول باقر کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ نگراں سیٹ اپ کے لیے 1 سے 2 دن کے اندر جو نام ہے وہ فائنل ہو کے منظر عام پہ آ جائے گا، لیکن ابھی سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ کراچی میں سندھ کے اندر نگراں وزیر اعلیٰ کا جو ایشو ہے اس پہ بیٹھک جاری ہے۔ آج بھی مختلف سیاسی جماعتوں کی ملاقات ہونی ہے اور 1 سے 2 دن کے اندر نگراں وزیر اعلیٰ کا نام جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ جی 1 سے 2 روز میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کون ہوگا، نام سامنے آ جائے گا۔ رضوان احد خان اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سندھ اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ۔ محکمہ قانون نے سندھ اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری کا ڈرافٹ تیار کر لیا۔ مشیر قانون مرتضی وہاب نے ڈرافٹ تیار کرنے کی تصدیق کر دی۔ مشیر قانون کے مطابق سندھ اسمبلی 11 اگست کو تحلیل کر دی جائے گی۔ سندھ اسمبلی کی آئینی مدت 13 اگست کو مکمل ہوگی۔ محکمہ قانون سندھ اسمبلی نے تحلیل کرنے کے لیے سمری کا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے۔ مشیر قانون مرتضی وہاب نے ڈرافٹ تیار کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ مشیر قانون کے مطابق سندھ اسمبلی 11 اگست کو تحلیل کر دی جائے گی۔ سندھ اسمبلی کو وقت سے پہلے تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مشیر قانون نے تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے۔ ضروری ڈرافٹ کو تیار کر لیا گیا ہے۔ محکمہ قانون سمری مروجہ طریقہ کار کے تحت وزیر اعلیٰ سندھ کو بھیجے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس خالی کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ملنے والے گفٹ بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس سے منتقل کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 5 سال وزیر اعلیٰ ہاؤس میں قیام کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس خالی کر دیا۔ ان کے رہائشی ایریا میں جو ان کا سامان تھا اس کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو جو گفٹ دیے گئے تھے وہ بھی منتقل کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو اہم خبر دیں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس وزیر اعلیٰ سندھ نے خالی کر دیا ہے، ان کا سامان وہاں سے منتقل کر دیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ کے جو تحائف ان کو دیے گئے تھے وہ بھی منتقل کر دیے گئے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن سکینڈل اور توشخانہ کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ احتساب عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانتیں خارج کر دی۔
जी हाँ, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में पेशरफ्त हुई है और जमानतों की इस्तदा की गई थी। जमानत की इस्तदा को खारिज कर दिया गया है, इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। 190 मिलियन पाउंड करप्शन स्कैंडल और तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की जमानतें खारिज कर दी हैं। अलकादिर ट्रस्ट के स्नैप के बुशरा बीबी के गिरफ्तारी के ऑर्डर ना होने के बयान पर जमानत की दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत निपटा दी। आपको एक बार फिर बताते चले, मामला है ये अलकादिर ट्रस्ट केस का। नैब के बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के ऑर्डर ना होने की बयान पर जमानत की दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से आपको बता रहे हैं, नैब का बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स ना होने का बयान, बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। बुशरा बीबी और पीटीआई की कानूनी टीम चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए अटक जेल पहुंची। जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी। बुशरा बीबी 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले के साथ अटक जेल पहुंची। अटक जेल के बाहर पुलिस और एलीट फोर्स के दस्ते हाई अलर्ट थे। जी, आपको बताते चलें, बुशरा बीबी और पीटीआई की कानूनी टीम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के लिए अटक जेल पहुंची। जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी। बुशरा बीबी 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले के साथ अटक जेल पहुंची। अटक जेल के बाहर पुलिस और एलीट फोर्स के दस्ते हाई अलर्ट हैं। जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी। वकला की टीम भी बुशरा बीबी के हमरा मौजूद थी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि बुशरा बीबी 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले के साथ अटक जेल पहुंची हैं। जेल इंतजामिया की जानिब से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। अटक जेल के बाहर पुलिस और एलीट फोर्स के दस्ते हाई अलर्ट हैं। वेलकम बैक। अपोजिशन लीडर राजा रियाज वजीर आजम हाउस पहुंच गए। अपोजिशन लीडर राजा रियाज निगरान वजीर आजम के लिए 3 नाम वजीर आजम को देंगे। अहम खबर आपको देंगे, निगरान वजीर आज़म के लिए मशावरत का अमल शुरू हो गया है। वजीर आज़म ने अपोजिशन लीडर को मुलाकात की दावत दी थी। मनाजिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 3 नाम देंगे, अपोजिशन लीडर भी 3 नाम देंगे, उसके बाद मशावरत होगी। राजा रियाज वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए हैं वज़ीर आज़म की दावत पर। ये मनाजिर आप बराह रास्त देख सकते हैं। अपोजिशन लीडर राजा रियाज वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए हैं। आज यहाँ पर मशावरत होगी। 3 नाम अपोजिशन की जानिब से और 3 नाम हुकूमत की जानिब से दिए जाएंगे और तवक्को ये की जा रही है कि कोई एक नाम आज फाइनल कर भी लिया जाएगा। और अगर ये दोनों साइड से कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो इलेक्शन कमीशन ये फैसला कर सकेगा। तफसीलात हासिल कर लेते हैं। साकिब सईद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी साकिब सईद, राजा रियाज पीएम हाउस पहुंच गए हैं, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, बिलाखिर अपोजिशन लीडर राजा रियाज जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत के लिए उनको खत लिखा था, तो अब वो कुछ ही देर कबल यहाँ पर वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं और अब उनकी मुलाकात जो है वो भी शुरू हो चुकी है। लेकिन 3 नाम जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखे जाएंगे अपोजिशन लीडर की जानिब से, और 3 नाम जो इत्तेहादी हुकूमत ने जिन पर इत्तेफाक किया है वो अपोजिशन लीडर के सामने रखे जाएंगे और फिर उन पर मुशावरत की जाएगी। अगर आज किसी भी एक नाम पर इत्तेफाक हो जाता है तो निगरान वज़ीर आज़म का नाम जो है वो सामने आ जाएगा। ताहम अगर इत्तेफाक नहीं होता वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान तो फिर ये मामला जो है वो पार्लिमानी कमेटी में जाएगा और पार्लिमानी कमेटी जो है वो इस मामले को देखेगी। ताहम अगर अपोजिशन जो पार्लिमानी कमेटी है वो भी किसी भी नाम पर इत्तेफाक ना हो सका वहाँ पर, तो ये मामला जो आखिरकार जो इलेक्शन कमीशन है उनके पास पहुँच जाएगा और फिर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। लेकिन ये पूरा जो प्रोसेस है ये 8 दिनों का प्रोसेस है। 3 दिन तक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर जो हैं
वो इस चीज पर इस मामले पर डिस्कस कर सकते हैं, और उसके बाद जो पार्लिमानी कमेटी होगी वो भी उस पर डिस्कशन करेगी, और आखिर में फिर 2 दिन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर इत्तेफाक हो गया अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के दरमियान, तो फिर बिल्कुल 3 नाम अपोजिशन, 3 नाम हुकूमत देगी, 3 दिन होंगे और इन 3 दिनों में फैसला करना होगा। फैसला ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन के पास फैसला जाएगा। इसमें पेशरफ्त मजीद हुई है, मुलाकात शुरू हो गई है और अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात शुरू हो गई है। 3 नाम अपोजिशन लीडर अपने साथ लाए हैं, 3 नाम वज़ीर आज़म ने मशावरत करके अपने इत्तेहादियों से शामिल किए हैं। इन 3 नामों पर मशावरत की जाएगी। 3 दिन हैं, ये 3 का सीगा है जो बहुत अहम है। 3 नाम अपोजिशन के, 3 नाम हुकूमत के और 3 दिन का वक्त है। इन 3 दिनों में मशावरत की जा सकती है और अगर कोई फैसला नहीं हो सकता तो अमेरिका ने एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चेयरमैन पीटीआई के अमेरिका पर इल्जामात सरासर लघु और बेबुनियाद हैं। अमरीकी एहलकार की बातों को सियाक़ो सबाक़ से हटकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश में मुलव्विस नहीं। साइफर का बयानिया कतई बेबुनियाद और झूठा है। साबिक़ पाकिस्तानी सफ़ीर भी तरदीद कर चुके हैं। वाशिंगटन इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। अवामी जमहूरिया चीन के कौंसल जनरल का कहना है कि 10 साल कबल सिपैक के आगाज से अब तक मजमूई तौर पर 36 मंसूबे मुकम्मल या ज़ेरे तामीर हैं, जिससे पाकिस्तान में 25.4 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी आई है। तफसीलात लियाकत मुगल की इस रिपोर्ट में देखिए। मकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीन के कौंसल जनरल का कहना था कि 10 सालों में 36 मंसूबे सीपैक मुकम्मल और ज़ेरे तामीर हैं, जिसमें 25.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी की है, 17.55 बिलियन डॉलर की मजमूई आमदनी, 2.12 बिलियन डॉलर टैक्स दिया गया, 2,36,000 मुलाजमतें मौके मिले, 8,000 मेगावाट बिजली पैदा की, 886 किलोमीटर कौमी ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई और 510 किलोमीटर हाईवे बनाए गए हैं। Since CPEC started 10 years ago, altogether 36 projects have been completed or under construction, which has brought $25.4 billion of direct investment to Pakistan, achieving cumulative revenue of $17.55 billion. Cumulative tax payment of $2.12 billion, creating 236,000 job opportunity and helping to earn 8,000 megawatts of electricity, 510 kilometers of highway, and 886 kilometers of national coal transmission lines. चीन के कौंसलेट का कहना था कि गवादर बंदरगाह में अब भी कसीरुल मकासिद बढ़ते हैं, 50,000 टन वजनी जहाजों को संभालने की सलाहियत रखती हैं। Significant progress has been achieved in the construction of Gwadar port. The port now has a 3 multi-purpose berth capable of handling 50,000 ton vessels. Fully operational. चीन के कौंसलेट का कहना था कि गवादर न्यू एयरपोर्ट डिसलिनेशन प्लांट पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप के तहत और अस्पताल भी चीन की मदद से बनेंगे। गवादर फ्री जोन का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। सी पैक में सबसे ज्यादा सरमायाकारी और पैदावार की गई है। 14 तवानाई प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो चुके हैं। पेशावर में जश्न आज़ादी की तैयारियों का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। शहर के बाजारों में कौमी परचमों, टोपों और बैजेस लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। पेशावर से रिपोर्ट देखते हैं। जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का दिन जोश और जज्बे से मनाती हैं। यही वजह है कि मुल्क के दूसरे शहरों की तरह पेशावरियों की जानिब से जश्न आज़ादी की तैयारियों का सिलसिला भी अपने उरूज पर पहुंच गया है। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार लोग खरीदारी करने बाजार आए हैं। शहरी कहते हैं आज़ादी का दिन जोश से मनाएंगे। 14 अगस्त खुशी से मनाना चाहिए। ये दिन हमें बताता है कि पाकिस्तान का खुशी का दिन है और इस दिन को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। इंशाल्लाह मनाएंगे भी, अपने भी मनाएंगे और बच्चों को भी मनाएंगे।
यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए जहां हर तबके के लोग तैयारियों में मसरूफ हैं, वहां शहर में कौमी परचमों को जा बजा खूबसूरती से सजाया जा रहा है। पेशावर के बाजारों में कौमी परचम और बैजेस लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। बड़ों के साथ बच्चे भी जश्न आज़ादी की तैयारियों में दिलचस्पी ले रहे हैं। इंशाल्लाह 14 अगस्त हम धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि इस दिन हमारा प्यारा मुल्क आज़ाद हुआ था और बच्चों को खूब इंजॉय करेंगे। यौम आज़ादी में चंद रोज बाकी हैं। शहर में जश्न आज़ादी के हवाले से जहां और तैयारियां जोश व खरोश से जारी हैं, वहां पेशावरियों का जोश व खरोश काबिल दीद है, जो मुल्क से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन अली रहमान के साथ जान अफजल, पेशावर अब तक। जज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद में अपनी जिंदगी वक्फ करने वाली डॉक्टर रुत फ़ाऊ की छठी बरसी आज मनाई जा रही है। जर्मन नजात डॉक्टर रुत फ़ाऊ ने पाकिस्तान में जज़ाइम के इलाज के लिए अपनी जिंदगी के 56 साल दे दिए। इंसानियत की खिदमत करने वाली मसीहा की जिंदगी का मुख्तसर अहवाल बता रहे हैं ज़िशान अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। 9 सितंबर 1929 को जर्मनी में जन्म लेने वाली रुत कैथरीन मार्था फ़ाऊ ने अपनी जिंदगी के तकरीबन 56 बरस पाकिस्तान में जज़ाम के मरीजों के इलाज के लिए वक्फ किए। इसी दौरान उन्होंने मुल्क भर में जज़ाम के मरीज के लिए 157 क्लिनिक्स कायम किए, जहां 56,780 मरीजों का इलाज किया। इंसानियत के लिए डॉक्टर रुत फ़ाऊ की खिदमात के एतराफ में उन्हें हिलाल इम्तियाज, हिलाल पाकिस्तान, निशान कायदे आज़म समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया, जबकि मेडिकल यूनिवर्सिटी और सिविल अस्पताल को भी इनके नाम से मौसूम किया गया। 10 अगस्त 2017 को डॉक्टर रुत फ़ाऊ कराची में 87 बरस की उम्र में इंतकाल कर गयीं और मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ कराची के गोरा कब्रिस्तान में आसूदा खाक हुई। खैरपुर में समाजी तंजीम की जानिब से बेसहारा और यतीम बच्चों में स्कूल बैग्स तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। खैरपुर में समाजी तंजीम की जानिब से बेसहारा और यतीम बच्चों में स्कूल बैग तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। समाजी तंजीम के चेयरपर्सन मैडम सनम राजपर ने कहा कि बेसहारा बच्चों में मदद करने से दिली सुकून मिलता है। पर SOS चिल्ड्रन विलेज खैरपुर में जो मासूम बच्चे हैं उनमें आज स्कूल बैग्स तकसीम करके एक खुशी और सुकून महसूस हुआ। इंशाअल्लाह हम पूरी सिंध में जहाँ भी गरीब बच्चे होंगे उनके लिए स्कूल बैग्स, यूनिफॉर्म और बुक्स, किताबें वगैरह जो है अपने शाह फाउंडेशन की तरफ से तकसीम करेंगे। चिल्ड्रंस के लिए जो है वो स्कूल्स बैग मुहैया किए हैं और इन बच्चों में अभी खुशी की लहर दौड़ गई है। तकरीब में SOS चिल्ड्रन विलेज की टीचर्स, स्कूल के बच्चों और समाजी तंजीम के ओहदेदारों ने शिरकत की। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ सिराजुद्दीन शेवानी, खैरपुर अब तक। और अभी आपको बरह रास्त ले चलते हैं। साबिक वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब तकरीब से खिताब कर रही हैं कि जिस वक्त मैंने ये कानून पेश किया पहले दिन नेशनल असेंबली में, उस कानून के बाद उसकी जो धज्जियां उड़ाई गई बगैर पढ़े, एक एक शिक के ऊपर बगैर पढ़े गुफ्तगू की गई, जिसको पता ही कुछ नहीं था। अब कल मुझे किसी ने कहा पैमरा चेयरमैन का टेन्योर को फिक्स कर दें और पैमरा चेयर की 1 टाइम एक्सटेंशन कर दें। वो मौजूद अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।